चलेगी और किसकी चलेगी। 162 candidates contesting from 7 Lok Sabha seats of Delhi. More than 1.52 crores eligible voters will go into polls in Delhi on 25th of May 2024. NDTV is here on the ground to tell you the mood of Delhi and Delhiites. Is BJP going to win, or Aam Aadmi Party and Congress alliance will sweep Lok Sabha elections in Delhi? No, I think in Delhi, as far as Lok Sabha is concerned, I think BJP is going to win all the 7 seats. 400 पार होगा जरूर। 400 पार डीजल होगा, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार दालें होंगी। केजरीवाल है जी। भाई साहब मोदी आएगा जी इस बार। मुझे लगता है केजरीवाल भी आ सकते हैं, 50-50 चांसेस हैं। I will go with India Alliance because we already given 10 years to the NDA and most probably they are the failed 80 crore people and they're below the poverty line. They're giving them ration. They are not doing for the education. They are not doing telling them coaching etc. like the Europe. सरकार आएगी अब की बार 400 पार है तो है। इस बार 100 सीटें लगा ले तो मैं गुलाम हो जाऊं। दिल्ली में रेडी लगाना छोड़ दूंगा। किसकी सरकार बन रही है दिल्ली? साथ की साथ तो ले जाएगा केजरीवाल। वो सबसे बड़ा ठग अगर इस दुनिया में है तो केजरीवाल है। अन्ना हजारे को उसने धोखा दिया, ठीक है, प्रशांत भूषण को दिया नहीं दिया। पहला कसम खाई जो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, उसने पहला गठबंधन करा। बच्चों की कसम खाई जो बंगले कार नहीं लेंगे, उन्होंने बंगले कार ली। गरीबों पे अत्याचार करा, एक पानी के बोतल के साथ पानी नहीं मिल रहा। आपको शराब के साथ शराब फ्री दिया नहीं दिया। सबसे बड़ा अगर चोर है तो केजरीवाल है। केजरीवाल आएंगे। हाँ, आम पार्टी। मोदी जी की कोई लहर कोई पता नहीं है। नहीं, आने वाले उससे पहले वाले टाइम में क्या होता था, आदमी जॉब करता था, सैलरी मिलती थी, घर नहीं पहुंचता था, सैलरी उनकी छीन ली जाती थी। मुझे जो लगता है आदमी जो भी कमा रहा है 2 पैसा 4 पैसा 10 पैसा कमा रहा है, चैन से खा रहा है। इसलिए मोदी सरकार बेस्ट सरकार। कौन जीत रहा है दिल्ली में 7 लोकसभा सीट से? भाजपा जीत रही है। ऐसा क्यों लगता है? भाजपा अच्छा काम कर रही है पूरे इंडिया में, हर तरह से। रोड का ले लो, चाहे किसी भी एंगल में ले लो, या लेडीज टॉयलेट देख लो, हर जगह खुला पड़ा है। मोदी जी ने घर घर गैस सिलेंडर बांटा है, तो काम तो ज़मीनी स्तर पर किया उन्होंने। हम बिजनेसमैन है, ये दूसरे से बिजली का फ्री लेकर के कमर्शियलों से वसूल रहा है। 28 रुपये यूनिट पड़ती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं बिजली के रेट नहीं है 28 रुपये यूनिट कमर्शियल का। ये हालात है। तो इस बार आप चाहते हैं बीजेपी सरकार है? क्या क्या काम आपको आम आदमी पार्टी की पसंद है? यार सारे काम पसंद है मेरे, समझो। शिक्षा देख लो, अस्पताल देख लो। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है? मोदी जी की लहर है। मोदी जी की 400 से पार जाएगी। केजरीवाल का कोई लहर नहीं है इस बार दिल्ली में? नहीं, कोई लहर नहीं है। दिल्ली को भी ऐसा लगता है ना कि ये दोनों ही रहने चाहिए, सेंटर में मोदी और लोकल में केजरीवाल। The mood of the country is good and there are changes in the country as well. Digitization is coming. So looking forward for Mr. Modi to get the youth of this country up. Indian Prime Minister Narendra Modi's BJP-led alliance is currently leading in early counting trends in the general election. But the main opposition alliance is doing better than expected. The numbers at the moment are well short of the landslide predicted by exit polls for Mr. Modi. Markets in India have fallen 6%. These are very early results and the tally could change as more votes are counted across India. The BBC's Arun Uday Mukherjee is in Delhi with the latest. Well, thanks very much for that. Yes, we continue to track the numbers and try to piece together the picture that has been emerging since counting began at 8 in the morning Indian Standard Time. But what is the biggest headline takeaway so far, even as we're yet to get the final picture, is the fact that what was widely anticipated to be a BJP landslide victory, in Prime Minister Narendra Modi's own words, the BJP was set to get more than 400 seats in a 543-strength parliament. Well, that doesn't seem to be happening, and that in itself is the big political headline that we can convey to you as we speak, as the numbers are being counted. In this election, you had Prime Minister Narendra Modi banking on his last 10 years in power of the ruling BJP. You also had dozens of opposition parties banding together, forming the India Alliance to take him on. So while the BJP seems to have lost some ground and there have been some upsets in some states, especially in the key state of Uttar Pradesh, which sends the maximum number of lawmakers, that is 80, to the Indian Parliament, there are also some gains that the opposition alliance has been talking about.
कोविड आता है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कोविड वैक्सीन वालों से पैसा लिया। आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। अदानी को कहते हैं पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। उनको कैसे मालूम कि अदानी टेम्पो में पैसे भेजता है? कैसे पता उनको? और भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, नोटबंदी वाले प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं। तो मोदी जी, अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई, ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो आपके मित्र हैं। उनके हवाई जहाज में आप खूब उड़े। 10 साल अदानी अंबानी का नाम नहीं लिया। मगर भाइयों और बहनों, मैंने छोड़ा नहीं। अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। अंत में नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, कांपते हुए कहता है अदानी अंबानी का नाम पब्लिक में लेता है। अदानी और अंबानी का नाम जिस दिन प्रधानमंत्री ने ऐसे स्टेट से ले ली, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हार मान ली। मैं बता रहा हूं, आप लिख लो, मीडिया वाले लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी,
55 लाख वोटिंग मशीनें हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है।